अगर आपके पास स्क्रिप्ट है और आप इंस्टॉल करना चाहते हैं एक फ्री पैनल जो कि सी पैनल को रिप्लेस करता है, इफ़ यू कैनॉट अफोर्ड द सी पैनल, डेफिनेटली दिस इज़ द ओनली ऑप्शन यू कैन हैव, and it's one of my favorite panel and I have tried it. I'm going to show you how you can install this on your VPS. आप अपने VPS पे इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री फॉरएवर है। आप इसका प्रो वर्जन ना भी लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरे सामने इस टाइम एक VPS है जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। All you have to do is just get all of your VPS details into your, like you can get the details from your server, from your email, or from somebody. If you are working for client, you can ask them to provide you. And if you are doing it for yourself, then what you have to do, just log in as the root, okay, root or whatever the default email is, and just have the Ubuntu version, you can say 2022, okay. So if you can see, I'm going to close this one, I'm going to reopen this one, okay. This is my Contabu server, which is on the Ubuntu 22.04.5 LTS, and I have just recently upgraded it. Now what we have to do, just type here clear and it will clear all the command lines. Now what I'm going to do, I'm going to show you very simple step to install, and I'm going to do this in front of you right now. Please, if you really like this video, don't forget to subscribe and like this video. And what you have to do, install the script. As you can see, the recommendation is Ubuntu 22.04. So click copy and come to this command line and right click and then press enter. Now this will install the AA panel to your www.directory. So what do you have to do? Do you want to install AA panel? Yes, I want to install that. If you want to change, you can just type no. But most of the time we always select the Y, and it means this is going to be selected. And now wait for the magic. This will take like time depending on your server, depending on your internet speed, and also on your server speed. So while this is being installed, happening right now in front of you, I'm going to give you some tips right now. अब आपको करना ये है कि जब आपका ये सर्वर इंस्टॉल हो रहा होता है और आपके पास जब एक ऑप्शन होता है कि आप इस सर्वर के ऊपर आप जब एक पैनल इंस्टॉल करते हो तो उसमें बहुत सारे पैनल्स आते हैं। ए पैनल भी होता है, डिफरेंट दूसरे पैनल्स भी होते हैं, ठीक है। सी पैनल मोस्टली बहुत पॉपुलर है, लेकिन अब वो बहुत महंगा हो चुका है। तो एक जो बंदा VPS लेता है वो सी पैनल कॉस्ट कॉस्टली होता है, तो उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाता। So once you don't have the money to afford the C panel for your VPS server, then this is the only option for you, which you can have the free panel. You can manage your sites, you can install the SSL certificates and whatever you want to do. You want to use the Apache, Linux, whatever you want to do. It's like a magic, okay. From panel everything is possible, everything is very easy to manage, but without panel it's really difficult. We all have to use all the commands. तो हमें कमांड्स यूज़ करनी पड़ती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो अभी आपके सामने ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। सो अब हमने क्या करना है कि हमने वेट करना है इसकी इंस्टॉलेशन का। अब ये सारा इंस्टॉलेशन हो रही है। ये मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसकी इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगर कोई एरर आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। बट ये वैसे 20 पे भी इंस्टॉलेशन हो जाती है इसकी, Ubuntu 20.01, 02, 03 पर उस पर भी, बट रिकमेंडेशन जो है वो 22 की है। नाउ जस्ट वेट फॉर इट अंटिल द इंस्टॉलेशन हैज़ बीन डन। तो इसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो जितने भी डोमेन्स हैं, जो चीज़ें आप अपने पैनल पर डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एक जो डोमेन है उसको भी मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, ठीक है। लेट्स सी कि कितनी देर लगाता है। Now the panel has been installed. Now as you can see, congratulations, installed successful. All you have to do, just select all of these things and click press Ctrl and C. It means now the details are being copied and you have everything in your clipboard. All you have to do, just create the new file, which is the text one. I would say client VPS details AA panel and paste it, okay. अब आपने क्या करना है, you can use the same IP address with this one, AA panel internet address, okay. So what I will do, I will just select this one and click
and I will copy this one, Control C, and then I will come back to this location, advance, proceed to continue. Everything is normal, don't worry. Now we will use the same credential, username, copy this one and save, and the password, and use this one, click login. Login succeeded, loading, everything is okay. Now there will be some final step, okay, and this is a congratulation page. अब आपने क्या करना है, अब आपने इनमें से चूज करना है, यू हैव टू चूज वन ऑफ दिस। अब आपने LNP जो रिकमेंडेशंस है वो यूज़ करना है, लिनक्स को यूज़ करना है या अपाची को यूज़ करना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आप किस चीज़ को प्रेफर करना चाहते हो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपाची को यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट है, लिनक्स को यूज़ करना चाहते हैं nginx को तो वो भी आपके लिए बेहतर है। दोनों में यूज़ होता है सर्वर सेम में, बट मोस्टली जो है वो अब लोग अपाची यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्विक इंस्टॉल पे वन क्लिक के साथ हम अपाची को यूज़ करेंगे, ठीक है। अपाची जो है वन ऑफ द बेस्ट है इस टाइम करंटली, तो मैं लैम्प को इंस्टॉल कर रहा था। वैसे रिकमेंडेशन उनकी जो है वो ये है, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपाची को। अब ये रिक्वेस्ट जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। दिस विल टेक लाइक लॉट ऑफ टाइम, लाइक इट विल टेक 20 minutes, 15 minutes or 25 minutes. So I will come back after the installation has been done, okay. Now the two things are done, MySQL is done, Apache 2.4 is done, and MySQL 5.7 version is done. I'm waiting for the task 3, like 8.3 PHP is left, and pure FTP is left with 1.0.49, and the PHP MyAdmin 5.2 is left. So I will wait for these things and I will come back to you. Now all the installation has been done. और इसके बाद क्या करना है, sorry but I need to speak Hindi as well. तो अब इसके बाद अब आपको क्या करना है कि अब अपने आप इस सेक्शन में आ जाए। लॉगिन आप करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड फ्री, ओके। तो आप इसका लाइसेंस जो है वो आपको 3 years के लिए मिल सकता है आपको, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो, बट आई विल स्किप दिस टाइम। अब अपने वेबसाइट के अंदर आना है आपने। अब आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मैं अगर ऐड अ साइट डालना चाहता हूँ तो मुझे क्रिएट यहाँ पर डोमेन डालनी है। अब मुझे डोमेन कहाँ से मिलेगी, तो मैं डोमेन अपनी ऐड करूँगा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद मैं बैच क्रिएट कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे डोमेन सेम टाइम में डाल सकता हूँ। वर्डप्रेस को डायरेक्टली मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास वर्डप्रेस की जो टूल किट है वो भी है, जो टूल किट मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए आपको, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FTP सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर आप अपनी FTP डिटेल्स डाल सकते हैं। डेटाबेस के अंदर जाएं तो आप क्लिक करेंगे PHP MyAdmin पे, तो ये आपको PHP MyAdmin जो है ना एक्सेस आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। टर्निंग ऑफ पब्लिक एक्सेस, इम्प्रूव सिक्योरिटी, कंफर्म, पासवर्ड फ्री एक्सेस। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, बाइंड AA पैनल अकाउंट, तो ये हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। PHP वर्जन जो है उस पर कौन सा 8.3 है, जो इसके अंदर एक्सेस जो पोर्ट है वो 888 है। यहाँ पर फाइल्स मैनेजर है, वो फाइल्स पे जाना चाहें तो आप इसकी जो डायरेक्टरी है उसको मैनेज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन है, जो फाइल्स हैं डोमेन की। रूट डायरेक्टरी जाना चाहें तो ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। लॉग्स फाइल पे जाना चाहें, ये कौन कौन सी लॉग्स आपने स्टार्टिंग की थी। अकाउंट्स पे जाना चाहें, अकाउंट के अंदर आपकी ये सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। टर्मिनल आपका यहीं पे एक्सेस हो सकता है, इसी पे आप अपना टर्मिनल जो है ना वो आप बेसिकली तौर पे आप यहाँ पर BT लिखेंगे तो ये आपके सामने सारी कमांड्स आ जाएंगी। BT जो है ना A पैनल का जो कमांड है, रीस्टार्ट पैनल, चेंज पैनल, पोर्ट, ये सारा कुछ आप मैन्युअली भी कर सकते हो, ठीक है। क्रोन जॉब आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पर है पड़ी। उसके बाद आप ऐप स्टोर पे जाएंगे तो मुझे यहाँ पर ऐप स्टोर पे जो है ना वो जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं वो मैंने इंस्टॉल लाजमी करनी है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। DNS मैनेजर है, मेल सर्वर है, ये भी मुझे इंस्टॉल करना चाहिए। अब मैं PHP MyAdmin को इसको सामने ले आऊँगा, उसके बाद अपाची को भी मैं सामने ले आऊँगा। अब ये मेरे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जब मैंने ऑन किया ना वहाँ पर, तो ये मेरे यहाँ पर देखिए, ये PHP मेरे यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें हो गई। ये मेरा रैम की स्टोरेज है, CPU यूसेज है और लोड स्टेटस है।
तो ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आ सकती हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं ऐसी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।